أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم معزز مہمان مکرم برادران و بنات اسلام حاضرین و حاضرات ناظرین ناظرات السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کا یہ پروگرام آپ کے بچوں کی جو سالانہ کارکردگی ہے، جس میں نہ صرف آپ کی، آپ کے اساتذہ کرام کی، آپ کی سوسائٹی کی، اور پھر اس ملک میں، اس معاشرے میں پنپنے والی جو سوچ ہے، اس کی آشکاری کا ایک موقع ہے کہ ہم اس کو دیکھیں کہ ہم کیا کر رہے ہیں اور ہم نے کیا کیا ہے اور ہمارا ویژن اور مشن کیا ہے۔ میں جسٹ دو باتیں کرنا چاہوں گا۔ نمبر ایک، جو بچہ ہے نا، بچہ وہ مرکز ہوتا ہے، محور ہوتا ہے، جس کے گرد زندگی کے چار پہلو گھومتے ہیں۔ نمبر ایک، بچے کے والدین۔ نمبر دو، بچے کے اساتذہ۔ نمبر تین، بچے کا وہ ماحول اور معاشرہ جس میں وہ رہتا ہے۔ اور نمبر چار، بچے کا وہ لیڈر جو اپنی سوچ اور ویژن کو بچے کی ذات میں صلاحیت کرتا ہے۔ میں نے دیکھا ہے، بہنا یہ توجہ میری طرف پلیز، یہ توجہ فرمائیں، میں بڑی اچھی بات کر رہا ہوں، آپ لوگوں کے لیے بات کر رہا ہوں، دھیان سے سنیں، خاص طور پر مائیں دھیان سے سنیں۔ بہت سے والدین ایسے ہیں جو یہ دیکھتے ہیں کہ یہ ادارہ بہت تھوڑی فیس والا ہے، اپنے پیسے کو بچاؤ اور تھوڑی فیس والے سکول میں بچے کو داخل کروا دو۔ کچھ والدین یہ سوچتے ہیں سکول گھر کے قریب ہے، کرایہ بچ جائے گا، چلے ساتھ والے سکول میں داخل کروا دے، ہمیں دور جانے کا زحمت نہیں کرنا پڑے گی۔ کچھ پیرنٹس یہ سوچتے ہیں میرے کسی عزیز کا سکول ہے، میرے کسی دوست کا سکول ہے، بھائی کا سکول ہے، تو میں اپنے بچے کو اس سکول میں داخل کروا دیتے ہوں۔ اور کچھ لوگ یہ سوچتے ہیں کہ ادارہ ماڈرن ہے، ماڈرنائزیشن کی طرف لے کے جا رہا ہے، ہم اپنے بچے کو ماڈرنائزیشن کی طرف لے کے جانا چاہتے ہیں، تو ہم اس کو جدت آمیز ماحول میں ڈالنا چاہتے ہیں۔ آئیں، آج میں آپ کو بچے کی پرسنالٹی، اس کی شخصیت کی تکمیل کے 5 پہلو بتانا چاہتا ہوں۔ آپ اگر ان 5 پہلوؤں پر صحیح طور پہ کاربند ہو گئے تو بھلے وہ ادارہ کسی دور جنگل کے گاؤں میں ہو یا آپ کے گھر کے پاس ہو یا 20 کلومیٹر دور جانا پڑے آپ کو، اگر وہ 5 عوامل آپ کو ملتے ہیں اور 5 پہلو شخصیت کے ملتے ہیں کسی ادارے کے اندر، تو وہ ادارہ آپ کے لیے بہترین اور آپ کے بچوں کے لیے بہترین ثابت ہوگا۔ نمبر 1، پہلی چیز، بچے کی شخصیت کا دینی پہلو۔ تعلیم آپ آکسفورڈ یونیورسٹی میں جا کے بے شک حاصل کریں، لیکن اگر آپ کا بچہ سی اے کر گیا ہے، ایم بی اے کر گیا ہے، وہ انٹرنیشنل ٹیکنالوجی میں پی ایچ ڈی کر گیا ہے، اگر اس کے دینی اور روحانی پہلو اس کا اگر نہیں ہے اس کے بعد، اس کی تعلیم بیکار ہے۔ نمبر 2، بچے کی فزیکل ایجوکیشن۔ جو ادارہ آپ کے بچے کی فزیکل ایجوکیشن کی طرف دھیان نہیں دیتا، جو ماں اپنے بچے کی شخصیت کے فزیکل پہلو کی طرف دھیان نہیں دیتی، وہ بچہ بورڈ کا ٹاپر تو ہو سکتا ہے، لیکن فزیکلی انفٹ ہونے کی وجہ سے معاشرے میں کسی اور دوسرے کام کے قابل نہیں رہتا۔ وہ نہ گھر کے قابل رہتا ہے، نہ اپنی آنے والی زندگی میں ہم سفر کے قابل رہتا ہے، نہ وہ معاشرے میں کسی کی خدمت کرنے کا قابل رہتا ہے۔ تو دوسرا پہلو
पहलू, जिस्मानी पहलू, ये आपको भी और आपके टीचर्स को भी देखना है। नंबर 3, बच्चे का फाइनेंशियल करियर का पहलू। क्या आप अपने बच्चे को उस एजुकेशन की तरफ लेके जा रहे हैं जो कल को तालीम हासिल करने के बाद आपका बच्चा किसी का मोहताज ना हो और वो प्रॉपर फाइनेंशियल एजुकेशन हासिल करके बेहतरीन रोजगार कमा के अपनी जिंदगी को आसान बना सके? अगर वो पहलू आप दे रहे हैं तो याद रखें आपका बच्चा बिल्कुल सही राह पे जा रहा है। और नंबर 4, बच्चे का क्रिएटिव सेंस। बच्चे की, क्या आपका बच्चा रटा सिस्टम में चल रहा है या आपका बच्चा तख्लीकी पॉज का मालिक है? उसका फिक्री पहलू अगर वो ठीक है तो याद रखें आपका बच्चा बिल्कुल सही डायरेक्शन पर जा रहा है। और नंबर 5, सबसे एंड पे जो बात करूंगा, जो सबसे पहले होती है वो होती है इखलाकी पहलू। आपका बच्चा भले अंग्रेजी बोलता है, कायनात की सारी जुबानें बोलता है, लेकिन अगर उसके इखलाक अच्छे नहीं है, उसकी तालीम सारी बेकार है, उसके सारे पहलू शख्सियत के बेकार है और उसकी डिग्री बेकार है। अब ये 5 पहलू आपको किस इदारे में नजर आते हैं, किस टीचर में नजर आते हैं? अल्हम्दुलिल्लाह फर्स्ट टाइम मुझे आपके भाई कामरान साहिब ने मोहब्बत फरमाई। आज फर्स्ट टाइम आपका फंक्शन देखने का मौका मिला है। मैं सुनता था, आपके इदारे की तारीफ सुनता था, लेकिन जो सुनता था मैंने आज उसे बढ़कर पाया आपके इदारे। ये सारी खूबियां इस इदारे के अंदर और इस इदारे के मुंतज़मीन और इसके अफाज़े किराम के अंदर मौजूद हैं। तो जो मैंने देखी है, हया, इज्जत नफ्स, आदाब, और फिर उसके बाद फिक्री शऊरी पहलू, तख्लीकी पहलू, फिजिकल एस्पेक्ट और बच्चों की ट्रेनिंग्स, वो सारी चीजें हम यहाँ पर देख रहे हैं। याद रखें जहाँ एक तरफ टीचर का रोल है वहाँ 83% माओ का रोल है, 12% टीचर का रोल है और 83% माओ का रोल है, पेरेंट्स का रोल है। असातिज़ा किराम तो अपना रोल अदा कर रहे हैं। मैं अब ये पूछना चाहूँगा अपनी माओ बहनों बेटियों से जिनके बच्चे यहाँ पढ़ते हैं कि वो क्या अपना 83% 83% किरदार अदा कर रहे हैं? आज जो बच्चे यहाँ फर्स्ट आ रहे हैं, सेकंड आ रहे हैं, मैं यकीन से कह सकता हूँ उन बच्चों की माओ का पीछे हाथ है, उन बच्चों की माओ के पीछे निगाह है, उन बच्चों की माओ के पीछे उसके सपोर्ट है और वो बच्चे असातिज़ा किराम और माँ बाप की सपोर्ट से आज स्टेज पे परफॉर्म कर रहे हैं। और मैं दिल के था कर रहे से अप्रिशिएट करता हूँ उन माओ को। मैं अक्सर कहता हूँ, मैं कहता हूँ माँ ये ठान ले मैंने अपने बेटे को पायलट बनाना है, कायनात की कोई ताकत उसको रोक नहीं सकती है, बच्चा पायलट बनेगा। माँ सोच ले बेटे को मैंने डॉक्टर बनाना है, तो कोई कायनात की चीज माँ की उस ख्वाहिश को रोक नहीं सकती। मैंने प्रैक्टिकली अपनी लाइफ में देखा है ऐसे घर कि जिस घर की माँ लोगों के घरों में काम करके आटे की एक एक मुट्ठी बचा बचा के अपने बच्चों की फीसें अदा करके बच्चों को पढ़ाया। आज वो इलाके के MBBS नहीं बल्कि इलाके के MBBS, MCBS, FCCBS प्रोफेसर डॉक्टर बन के पूरे इलाके में आज MP और MLA का इलेक्शन लड़ रहे हैं। वो माँ, तो उन बच्चों की कामयाबी के पीछे उस माँ का हाथ है। एक वो माँ है जो अपने करीब की बातों को भेजने की बजाय अपने मुन्ने से बेटे को कहती है बेटा जा मैं तुझे अल्लाह की सुपुर्द करती हूँ और तू बगदाद में जाके तालीम हासिल कर। माँ घर से भेजती है, दूर दराज इलाकों में भेजती है और बच्चे को नसीहत करती है बेटा झूठ नहीं बोलना, ये पैसे संभाल के रखना। बेटा जाता है, रास्ते में डाकू पड़ते हैं, बच्चे से पूछते हैं क्या है तेरे पास? वो कहता है मेरे पास अशरफियाँ है। वो कहता है बच्चा है झूठ बोल रहा है, छोड़ देता है। दूसरा आता है पूछता है 40 अशरफियाँ, कहता है झूठ बोलता है। जब सब डाकुओं ने पूछा बच्चे ने एक ही जवाब दिया मेरे पास 40 अशरफियाँ। जब वो इकट्ठे हुए उन्होंने कहा आपको क्या तो नहीं दिया? कहते एक बच्चा रह गया है। वो कहता है मेरे पास अशरफियाँ हैं। वो कहते हैं हमने छोड़ दिया कि बच्चा है। कहता उसको लेके आओ। पूछा बेटा तेरे पास अशरफियाँ हैं? उसने कहा हैं। कहाँ पे है? तब मेरी माँ ने मेरे कमीज की जेब जो है कमीज के अंदर पॉकेट बना के उसमें सी के तो मेरे पास रखे हुए हैं। तो डाकू कहता है तूने झूठ क्यों नहीं बोला?
आप झूठ भी बोल सकते थे अपने पैसे, तो अपने पैसे क्यों नहीं बचाए आपने? तो बेटा कहता है कि मैं अपनी माँ के हुक्म का पाबंद हूं। जब घर से निकलने लगा था मेरी माँ ने कहा था बेटा कभी झूठ नहीं बोलना, तो मैंने पैसे की परवाह नहीं की, अपनी माँ के हुक्म की परवाह की है। डाकू नादिम हुआ, सरकार नादिम हुआ, वो कहता है बच्चा हो के माँ का हुक्म मान रहा है और मैं इतना बड़ा हो के अपने रब के हुक्म की नाफरमानी कर रहा हूँ। उसने तौबा की, सारा सामान वापस किया और अल्लाह से की तौबा की। तो जब माँ इस तरह की होती है, हमने वो माँ भी देखी है, बच्चा बाहर से चोरी करके लाए ना पैसे, तो माँ देखती है बेटे की जेब में पैसे हैं तो खुश होती है, कहती बेटा कहाँ से लाए हो? कहता माँ फुला के गले से चुराए। जब मेरा बेटा और लेके आओ और लेके आओ जाके, मेरा बेटा पैसे लेके आया, कमाई करके आया है, मेरा बेटा झूठ बोल रहा है सजा से बचने के लिए। नहीं, माओ की तरबियत अगर सही हो, आपका बेटा वली भी बनेगा, आपका बेटा कामयाब भी होगा, आपका बेटा तारीफ की तरफ अपना नाम भी रकम करेगा। तो जहां टीचर्स अपना किरदार अदा कर रहे हैं, वहां माएं ये मत समझे कि हम स्कूल भेज देती है, फीस देती है, हमारे बच्चे बस हमारी और कोई जिम्मेदारी नहीं है। मैं कहता हूं ना ना, टीचर की जिम्मेदारी सिर्फ 12% है, आपकी जिम्मेदारी 83% है, 83%। अगर आपने अपनी जिम्मेदारी पूरी न की, इदारे के रहमो करम पे छोड़ दिया, तो याद रखें हर इदारे में असातिज़ा ऐसे नहीं होते कि आपकी जिम्मेदारी को अमानत समझ के निभाएं। ये जिम्मेदारी सर कामरान साहब जैसे ही असातिज़ा होते हैं जो गाँव में बैठकर शहर की स्टडी से कई गुना बेहतर। मैं ये रिजल्ट देख रहा था, बच्चे 450 नंबर ले रहे हैं। अभी कल की बात है, इदारा जब शुरू किया था 1039 10 नंबर ऐसे। जब ऐसे असातिज़ा होंगे, आंखें बंद करके अपने बच्चों को आप ऐसे इदारे में भेजें, इदारे के साथ ताउन करें और असातिज़ा के साथ ताउन करें। इंशाअल्लाह यही बच्चे दुनिया में तरक्की की राह पे पिनपेंगे और उसके बाद अपना नाम तारीख के अंदर रोशन करेंगे। अल्लाह ताला की ज़ात आपका, आपके बच्चों का, इस इदारे का, इस इदारे की इंतजामिया का हामी और नासिर हो, अल्लाह कामयाबी दे। आखिर में ये बात कहूँगा, जहाँ तालीम की तरफ तवज्जो कर रहे हैं वहाँ अपने बच्चों की सेहत की तरफ भी तवज्जो करें। चूँकि मैं डाइटिशियन डॉक्टर हूँ, हर्बलिस्ट डॉक्टर हूँ, गैरोथेरेपिस्ट डॉक्टर हूँ, मेरे पास जो केसेस आते हैं उनमें 70 to 75% केसेस बच्चों की सेहत के होते हैं। बच्चा 3 साल का 5 साल का होता है, यानी 5 नंबर लगी होती है। बच्चियाँ यूँ इस तरह से सुपड़ी सड़ी होती हैं, वो बेचारियाँ ना खाती हैं ना पीती हैं। जहाँ तालीम की तरफ ध्यान है वहाँ माएँ अपनी बच्चियों की, बेटियों की, बेटों की सेहत का भी ख्याल करें। ये बहुत जरूरी अवसर है। अल्लाह ताला हमें अमल की तौफीक अता फरमाए। जज़ाकल्लाह खैर। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। Now the turn of class 4, and the first position goes to Ahmad